गौतम भाई माइक बंद कर लो। All right, so everybody is back. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon once again. Good afternoon. All right, so we'll start the class. No more Bermuda Triangle for now. Only GPS. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. Good afternoon. Okay, so we'll go to the PPT slides. We'll see. We have already seen the carrier frequency, the data transmitted, the data which is the pseudo random codes and navigation message. इसमें almanac वगैरह था, वो सब हमने कर लिया. We also understood how the range is calculated using CA code. Just now we have done. So that calls for an understanding of a question which may be asked. What is pseudo range? What do you mean by pseudo range? So can you now tell me what is pseudo range? Can you tell me what is pseudo range? Fictitious range, sir. Fictitious range, yes, but ऐसे नहीं बोल सकते ना. In terms of answer that we are going to give, that the range is calculated by synchronizing the satellite and user clock, but due to limitations, there remains a difference between the two clocks. So the range calculated also has an element of error due to this time difference between the satellite clock and the user clock. This range, which includes this error, is called pseudo range. Agreed? Understood? Yes, sir. Yes, sir. Any Yes, sir. answer we have to make as a whole story. किसी भी आंसर को बोलने बताने के लिए उसको स्टोरी में पूरा बिगिनिंग एंड एंड देना पड़ता है, तो वो होलसम लगता है, पूरा कहानी लगता है. तो यहाँ पे हमने शुरुआत कहाँ से करी कि हाँ भाई रेंज कैलकुलेट करना है तो टाइम सिंक्रोनाइज होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता. क्यों नहीं? लिमिटेशन है. क्या? क्लॉक बायस एरर. तो इस टाइम के साथ जो एरर निकलती है, उस एरर के साथ जो रेंज निकलता है उसको हम सूडो रेंज बोलते हैं. हाउ डू वी करेक्ट दिस सूडो रेंज? और द क्वेश्चन कैन बी कि इफ देयर इज अ रेंज एरर, हाउ द जीपीएस इज एबल टू कैलकुलेट करेक्ट पोजीशन? एरर अगर है इनपुट में, इनपुट चाहिए था क्या? उसका लोकेशन सैटेलाइट का और रेंज.
अगर इनपुट गड़बड़ होगा तो आउटपुट गड़बड़ होगी. So if there is this range error, how still we are getting the correct position? Almost. How we are getting that? Sir, we subtract C into delta T. That means the correction is done at the receiver mathematically. How it is corrected? The formula that we saw. Correct? We subtract the error by means of mathematical expression under root x1 minus x square plus y1 minus y whole square. Since there are three variables x, y, z, we require such 4 equations to solve this, and that is what 4 equations mean, 4 satellites. If only 2 variables x and y, latitude, longitude, then how many satellites required? 2. 3. दो तीन कोऑर्डिनेट बोले ना. 3 वेरिएबल के लिए 4 सैटेलाइट, 3 अपनी 2 वेरिएबल के लिए 3 सैटेलाइट. जो फ्लाइट रहेगी उसके लिए 4 और अच्छा, जो वेरिएबल के रहता है लिए. उसके लिए 3. 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड के लिए 4 सैटेलाइट्स, 2 वेरिएबल के लिए 1 2 3 सैटेलाइट्स ना, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, समझा था कि 3 सर्किल बनने चाहिए. सही है ना? Yes, sir. सही है. Exactly. So we are going to take a look at this. How the range is calculated correctly? उसका सिर्फ एक ही लाइन का आंसर है basically. This is corrected mathematically in the receiver by means of mathematical expression, which is like this. Pseudo range, sorry, true range is equal to pseudo range minus C into delta T is equal to under root so and so. बस इतना लिखना है. So can you take out your notes and let us see this question in the notes, and we also see the answer, how the answer is written. Everybody, मैं किसी का भी नाम ले लूंगा. Everybody take out that notes. मैं किसी को भी बुला लूंगा, कैमरा ऑन करने के लिए बोलूंगा और बात करूंगा. Please open that notes, find out the GPS का chapter, and in that chapter the question, what is pseudo range and how despite error in the range the receiver is able to calculate position correctly. Take out that question. Everyone be ready. मैं किसी का भी नाम ले लूंगा. हरप्रीत, Harpreet. Yes, sir. Okay. Have you found the question? नहीं सर, अभी मिला नहीं, खोज रहा हूँ. Okay, ढूंढो. Tell me when you're ready. Quickly, please.
Sahil. 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 Sahil is absent. Nikhil. Yes, sir. Have you found it? Yes, sir. Found. Okay, please read the question and then slowly, deliberately read the answer also. The question and the answer. Yes. Waiting for you, Nikhil. Yes, sir. 1 minute. So, 3 minutes. How does DGPS enhance accuracy of position pick? ना DGPS हम थोड़ी बात कर रहे हैं. Sir, what is pseudo range? How despite error in range the GPS receiver obtains accurate position fix? Yes, this is the question which I am asking, Nikhil. So, What is pseudo range? How, despite error in the range, the GPS receiver obtains accurate position pick? Exactly. थोड़ा microphone नजदीक कर लो और read the answer slowly so that everybody can listen to it. Pseudo range. In order to obtain range of satellites with accuracy, the exact position of the satellite has to be known to the GPS RX and also RX is receiver. RX is receiver. Wherever RX is written, read receiver. and also the clock of the satellite and the receiver has to be perfectly synchronized. Both of these are obtained from navigation message transmitted by the satellite. The range of the satellite is calculated by the formula range equals to speed of light into time the signal takes to travel from satellite to the receiver. However, due to limitations in method of clock update known as clock bias error, some error remains in the synchronization of the two clocks. As a result, the range of satellites calculated by the GPS receiver has an element of error due to the clock difference. This calculated range, which includes error due to difference in time between satellite clock and user clock, is called pseudo range and is given by pseudo range equals to speed of light into t plus c into delta t, where delta t is plus delta t. sorry sir. C into t plus delta t. C into t plus c into delta t sir. Okay, that is correct. ठीक है, मैं C को बाहर कॉमन ले रहा था. Okay, good, no problem. In order to obtain accurate position fix, the two ranges of the satellite are needed, which are derived mathematically at the receiver from the pseudo range using following range equation, eliminating errors from the pseudo range. R1 equals to PR minus C into delta T. Okay, TR क्या है? TR is equal to TR मतलब? PR equals to pseudo range of satellite 1. Very good. PR क्या है? Papa Romeo?
The Papa Romeo is the pseudo range of satellite 1. Very good. True range is equal to pseudo range minus. Please go ahead. Similar process is repeated for 3 more visible satellites, and with 4 such equations, the values of x, y, and z are computed by the receiver. Where R2 the same सबके लिए है. The true range of satellite 2 equals to pseudo range of satellite 2 minus c into delta t is same for the satellite 3 and 4. Okay. So everybody happy with the answer? Have we understood what we are talking about? What is pseudo range? Pseudo range correction कैसे होती है? Correction करने के बाद range कैसे निकलता है? Sorry, position कैसे निकलता है? X, Y, Z कैसे निकलता है? Are we clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes. good. So having known how the position is calculated, 3 सैटेलाइट 4 सैटेलाइट चाहिए हमें, सबका पोजीशन हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब ऑब्टेन करते हैं उनके एफएमआरएस डेटा से, सबका रेंज कैलकुलेट करते हैं उनके सीए कोड से, और फिर कैलकुलेशन करते हैं रिसीवर में, जीपीएस रिसीवर में, ये सब फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स वाई जेड के वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, ये एक्स वाई जेड जो है, निखिल यू कैन म्यूट योरसेल्फ, नो प्रॉब्लम नाउ, थैंक यू। The XYZ is relating to latitude, longitude, and altitude. The 3 coordinates or the coordinates that we are talking XYZ is basically latitude, longitude, and altitude of a given receiver. अर्थ पे कहाँ है? Okay, दिव्या। Yes, sir. जहां पे आप बैठे हुए हैं वहां पे लैट लॉन्ग लिखा हुआ है क्या? No, sir. कुर्सी के नीचे देखो तो। No, sir. तो लाइन खींची हुई है क्या? No, sir. फिर भी आप अगर जीपीएस रिसीवर ऑन करेंगे तो आपको अपने कुर्सी का एक नंबर बताता है ना, इतना लैटिट्यूड, इतना लॉन्गिट्यूड, इट इज शोन इन नंबर्स। इज दैट करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Correct. Followed by north, south, east, west. Yes. So how is it that when on the earth there is no line, there is no number, then also my position is being expressed by means of a number? ये कैसे हो रहा है? सर हमने अर्थ को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड कर रखा है ना सर, इसलिए। वेरी गुड, गुड अंडरस्टैंडिंग। अर्थ को हमने डिवाइड कर रखा है लैटिट्यूड्स में और लॉन्गिट्यूड्स में। यस। तो इतना बड़ा अर्थ, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू वेरी एक्यूरेटली डिवाइड इट? अगर आज नहीं तो 100 साल पहले मान लीजिए, was it possible for me to exactly measure the earth and divide the lines and all that? नो सर, पहले नहीं पॉसिबल था। पहले नहीं पॉसिबल, बट जो पॉसिबल नहीं हम कोशिश तो करते हैं। यस सर। तो very good understanding that earth has been divided into latitude, longitude. That means हमने अर्थ को एक स्फीयर के रूप में देखा और उस स्फीयर को हमने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में काटा और लॉन्गिट्यूड्स में काटा। जब ये किया तो हमें एक स्टार्ट पॉइंट चाहिए। यस सर। तो स्टार्ट पॉइंट ऑफ लैटिट्यूड हैज टू बी देयर, स्टार्ट पॉइंट ऑफ लॉन्गिट्यूड हैज टू बी देयर। व्हाट आर दे? सर लॉन्गिट्यूड का ग्रीनविच मेरिडियन हो गया लंदन में, एंड लैटिट्यूड्स का सर इक्वेटर हो गया। Very good. Then I also must have a 0-0 position for finding out height or depth. यस सर, वो सी लेवल ले लिया। Very good. Very good. But लंदन वाले अगर ये कहते हैं कि हम यहाँ से 0 करेंगे, तो मुझको किसी ने रोका है कि ना, मैं तो अपना 0 यहाँ से शुरू करूंगा। नो सर, बट एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जो सब फॉलो करे।
ओके, तो स्टैंडर्ड सब फॉलो करें। मैंने आपकी बात मान ली कि भाई ग्रीनविच का मान लिया तो बहुत अच्छे, अगर नहीं माना तो सही नहीं माना तो सर एम्बिग्यूटी होगी ना सर, आपका कुछ और लोकेशन आप अपने रेफरेंस से ले रहे होंगे, मैं अपना लोकेशन अपने रेफरेंस से ले रहा हूँ कुछ। great answer, very happy. That means there can be possibility of having different model of earth by different countries. यस उसका सर, अपना रेफरेंस सिस्टम, इसका अपना रेफरेंस सिस्टम, यस सर, and this is what is called geodetic system. Geodetic system is basically representing the earth by dividing them in latitudes and longitudes, and this can be done by so many countries. Not can be, it is done by so many countries. As you very rightly said that there is a world standard which many people are following, but then I am free to have my own charting system. Have you heard something called local chart? यस सर, Yes, sir. सर जैसे क्या है? यूरोपियन रोनियंस का अपना अलग है और वगैरह वगैरह। तो ये लोकल चार्ट मतलब क्या है? इंडिया के भी अपने अलग है सर। कि मेरे अपने रेफरेंसेस होंगे, मेरा अपना मॉडल होगा, मैं काउंटिंग शुरू करूंगा तो लाल किले से काउंटिंग शुरू करूंगा, मैं 0 वहां मानूंगा। अब मेरी चेयर की मेजरमेंट जो होगी वो ग्रीनविच से सही होगी या लाल किले से सही ज्यादा होगी? एट प्रेजेंट लाल किले से ज्यादा सही है। Local charts for local area are supposed to be more accurate. Right, यस sir. सर, इसीलिए so many masters will insist, give me a local chart, because that chart will have more information, more local information, more current updated information and more accurate. तो यस सर, कोर्ट में एंट्रीज के चलते के समय masters very often demand for local charts from the agents. So there are so many countries who have their own model of the earth. Remember one more thing, that earth is not a perfect sphere. वो फूला हुआ है ऐसा, जो कि ऑर्बिट कर रहा है ऐसे अपने एक्सिस के अराउंड, तो एक्सिस पे पतला है और इक्वेटर पे बल्ज है, थोड़ा सा फूला हुआ है, स्फेरॉइड है, ऑरेंज के जैसा ऐसा फूला हुआ। तो उसको एक यूनिफॉर्म तरीके से नहीं डिफाइन किया जा सकता, बट उसी को हमने काट पीट करके और एक मॉडल के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश की है बाय लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो मैं जब अपने कुर्सी के लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाय नंबर्स, बाय लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स इन नंबर, where I am beginning my counting, let us say from लाल किला, तो मेरे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का नंबर कुछ अलग होगा, और वही ग्रीनविच से मेजर करूं तो कुछ अलग होगा या नहीं? यस सर, अलग हुआ। So there is a possibility that there is a different latitude longitude for this position in two different systems. मेरी अपनी कुर्सी एक चार्ट के हिसाब से कुछ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, दूसरे चार्टिंग के हिसाब से और दूसरे डेटम चार्ट डेटम के हिसाब से अलग। और अगर एक ही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यूज करूं तो एक चार्ट में यहां मिलेगा तो दूसरा पोजीशन यहां मिलेगा, दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। That means if I have a chart, if I am looking at the position on the GPS and GPS का पोजीशन मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, should I be cautious or not? ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जीपीएस ने मुझको किसका बताया? कोई रेफरेंस तो लिया होगा इसने, अर्थ का कोई मॉडल तो यूज किया होगा, करेक्ट? यस सर, करेक्ट। और चार्ट में जो है वो कोई और मॉडल हो सकती है, या तो दोनों एक ही होगी, अलग अलग भी हो सकती है। यस सर, So it is important to understand what kind of chart datum is used by the GPS
and what is the chart datum of the chart that we are using. दोनों मैच करते हैं तो मैं इसका पोजीशन डाल सकता हूं यहां, अगर मैच नहीं करते तो नहीं डाल सकता. I have to apply some correction. So the model of the earth, as we are talking about कि latitude longitudes में है, this has been attempted at different times with different kind of accuracy levels. The Hydrographic Office of UKHO, they are pioneers in this and they are leading also. So उनका जो datum है, chart datum या geodetic system, that is known as World Geodetic System, WGS. आपने चार्ट पे लिखा होगा, देखा होगा WGS 84. हर चार्ट में Yes, sir. डेटम लिखा होना चाहिए so that it can be identified कि ये चार्ट किस रेफरेंस से बात कर रहा है. तो चार्ट में नीचे में लिखा होता है, ऊपर में नीचे में दोनों तरफ लिखा होता है WGS 84. WGS indicates that this is referenced with that UK model of the earth. World Geodetic System जो UK गवर्नमेंट का है, उन्होंने जो चार्ट का मॉडल बनाया है उसके बेसिस पे ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है इस चार्ट में. बट ये 84 क्या है? WGS तो समझ में आ गया कि यूके गवर्नमेंट का है, उन्हीं का नाम उन्होंने दिया हुआ है, तो ये यूके गवर्नमेंट का. ये 84 क्या है? It is simply Year. that last amendment, last correction to this system was done in 1984. इसके पहले जो बनाया था उसमें गलती निकली, उसके पहले जो बनाया था उसमें गलती निकली, तो इन्होंने 1960 में बनाया था WGS 1960. कुछ गड़बड़ी नोट की गई कि यहां से यहां पहुंचना चाहिए था लेकिन हम पहुंच जाते हैं वहां, तो मॉडल ऑफ द अर्थ वाज नॉट करेक्ट. इंप्रूवमेंट करी गई 1970 में, नया मॉडल बना, आगे पीछे हुए थोड़े, फिर समझ में नहीं आया, फिर 1972 में फिर चेंज किया. लास्ट कब किया इन्होंने? 84 में सर. 1984. That means these charts are referenced with WGS 84. Russia has got its own geodetic system. They call it PZ90, Papa Zulu 90. Similarly, other India का countries. Yes. इंडिया का सर? इंडिया का अलग से नाम नहीं मालूम है मेरे को, नहीं ध्यान है. IM तो सर मेरे को मालूम है, लेकिन ऐसे आगे का कोड पता नहीं है, आगे क्या कोड है. ओके, सर्च करेंगे. We'll try to find out. तुम भी ढूंढना इंडियन चार्टिंग सिस्टम को क्या कहते हैं. जैसे इंडियन जीपीएस सिस्टम को IRNSS तो बोलते हैं हम लोग, तो वैसे चार्टिंग डेटम भी हम लोग पता करेंगे. So what we are saying that this is the model of the earth. The GPS system, since we are studying GPS, हमारा टॉपिक GPS का चल रहा है, GPS is having default chart datum as WGS 84. अब जब ऑन करेंगे तो पहला जो लेके आएगा, जो आपको लैटलॉन्ग दिखा रहा है, that is by default WGS 84. But you can select different chart datums also. रिसीवर में दूसरे चार्ट्स के डेटम भी डाले हुए होते हैं. मैनुअली यू कैन चेंज द डेटम. तो इसी पोजीशन का WGS 84 में कुछ रीडिंग आती थी, दूसरे चार्ट में कुछ दूसरा रीडिंग आ गया, लेकिन फिजिकल पोजीशन यही. लेकिन अगर चार्ट और जीपीएस का रेफरेंस अलग होगा, दोनों के डेटम अलग होंगे, तो आपने इसकी पोजीशन यहाँ पे चार्ट पे डाली तो जहाज होगा यहाँ पे और पोजीशन बताएगा यहाँ. देयर कैन बी ए डिफरेंस
between two physical points. एक chart datum by the same latitude longitude on two different charts, chart datums, is called datum shift. समझ में आया? WGS 84 यहाँ पे पोजीशन हमने डाली, यहाँ पे वही चार्ट पे, दूसरे चार्ट पे अगर हमने यही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाला तो फिजिकली यहाँ पे आता है। मान लो कि एक बॉय है, इस बॉय का पोजीशन हमने देखा WGS 84 में तो यहाँ पे है, वही लैट लॉन्ग दूसरे चार्ट पे डालते हैं तो यहाँ पे दिखता है, दूसरे अलग जगह दिखता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, फिजिकल डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल पॉइंट्स represented by the same latitude longitude on different chart datums is called datum shift. Is called datum shift. So it is important to know the chart datum and the datum used by the GPS receiver. You can put the position on the chart only when they are matching. If not, you must apply the correction. So these couple of points, we'll see it on the screen, on the slide. So let us go to the slides. Let me find out the file first. One second. All right, so here we are. Okay, now go through this as it is going step by step. हम लोग रिवाइज कर रहे हैं सभी चीजों को. We have 10-15 minutes. Just supplement your understanding what all we have covered. L1, L2, the frequencies, carrier frequencies, the data carried on these two frequencies, next it is the same thing. L1 पे क्या चीज, L2 पे क्या चीज, L1 पे CA code, P code and navigation message, L2 पे CA code, P code and navigation message. Read some about CA code. Everyone familiar with this now? Yes, sir. Okay, next CA code.
सर एक मिनट थोड़ा सा बचा था पीछे हाँ सर एक मिनट 1 second. Okay. Yes. यस सर यू कैन चेंज द प्राइस Next. This line we have understood or not? These 3 lines. यस सर Very good. P code. सर अपन ने तो 1.023 की बात करी थी ना स्पीड की ये फास्टर रेट है ना 10 times फास्टर. CA कोड होता है यस सर Yes, sir. 1.023. This is 10.23. CA कोड 1 माइक्रोसेकंड का था, ये 0.1 माइक्रोसेकंड का है. CA कोड 293 मीटर का था, this is 29.3 meters. है ना? यस सर क्लियर है या नहीं? फिर से गड़बड़ हो गया सब. नहीं सर क्लियर है क्लियर ओके. नेक्स्ट स्लाइड. P कोड. सर इसमें एक बार ये पहले वाला पॉइंट बताइए प्लीज The code length is so big. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. Every second, how many bits of transmission is happening? 10.23 into 10 to the power 6 bits. Every 1 second, so many bits transmitted. तो 267 days में कितना transmit होगा? Will this be multiplied by 267 days? यस Converted into seconds? Yes, sir. तो बहुत बड़ा Yes, sir. डेटा हो जाएगा. So what is done? What is done? Not the whole code 267 days is transmitted in once. Only 7 days का कोड दे देते हैं उसको. सैटेलाइट को 7 दिन का कोड दे देते हैं. सैटेलाइट वो 7 डेज का कोड ट्रांसमिट करता रहता है. जब खत्म होने वाला आता है तो अगले 7 डेज का कोड भेज देते हैं ऊपर. So 267 days complete data is not transmitted in one go. It is not uploaded to the satellite. Only 7 दिन का कोड is sent. जब 7 दिन खत्म होने लगता है तो फिर अगले 7 दिन का भेज देते हैं. Understood? यस सर So only weekly segment is assigned. मास्टर पी कोड तो 67 डेज का है, लेकिन 7 दिन का पोर्शन एक बार दे देते हैं. जैसे जीपीएस अगर हम पढ़ रहे हैं तो एक बार में सारा नहीं दे देते हैं ना. आपको क्लासेस में देते हैं, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास. एक ही दिन सब पढ़ा देंगे तो नहीं होगा ना, बहुत हेवी हो जाएगा आपके लिए. आपका जो डेटा है, मेमोरी है, जो रैम है आपका, वो ओवरलोड हो जाएगा ना. Yes, sir. इसीलिए एक दिन में एक टॉपिक, एक दिन में 2 टॉपिक ज्यादा से ज्यादा थोड़ा थोड़ा देते हैं ताकि सब काम चलता रहे सही से. क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट.
So these are some hard facts about the CA code and P code that you should be able to write. You must understand and remember, or remember and write. Next, ये हमने कर लिया था. So we'll jump to the other part. सबफ्रेम्स की बात कर ली थी हमने. रेंज कैलकुलेशन. Pseudo random codes, CA code and P code transmitted on L1, L2. These are traveling at the speed of light. All electromagnetic waves travel at the speed of light. Light is also electromagnetic wave. Only difference, we can see it. 98.3 आता है, वो नहीं दिखता, लेकिन जो लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी है वो हम देख पाते हैं. हमारे आईज आर सेंसिटिव टू दैट वेव्स. The range is calculated like this. यहाँ पे डेल्टा T is what? T2 minus T1. ठीक है. Next, all good? Any queries? Any queries? कोई कुछ नहीं बोलता. Next, ये थोड़ा समझा दीजिए सर. क्या हुआ? ये थोड़ा पोजीशन फिक्स बाय डीपीएस. क्या इस पे क्या बताना है? कुछ पूछ रहे हो क्या? यस सर इसको थोड़ा समझा दीजिएगा. पोजीशन फिक्स हमने बताया ना भाई कि यस. रिसीवर जो है यहाँ पे है, कहीं पे रिसीवर अर्थ पे कहीं है, वो सैटेलाइट से रेंज कैलकुलेट करता है तीनों से. सैटेलाइट का पोजीशन निकालता है एफिमेरिस डेटा से. फिर यहाँ पे ट्राइलैट्रेशन का कैलकुलेशन करता है अपने रिसीवर में, और उसके बाद यहाँ XYZ निकाल लेता है, पोजीशन कर लेता है फिक्स. यस सर. XYZ कैसे निकालता है? तो ट्राइलैट्रेशन का फॉर्मूला देखा ना हमने अभी. यस सर. तो वही कैलकुलेशन चल रहा है यहाँ पे रिसीवर में भीतर. ठीक है. यस सर. तो ये अर्थ पे है, तो अर्थ पे 3 सैटेलाइट से काम चल जाता है. वेयर देयर इज ओनली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बट नो ऑल्टीट्यूड. XY के जहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स हैं वहां 3 सैटेलाइट से काम हो जाता है. बट इफ देयर इज थर्ड डायमेंशन आल्सो व्हिच इज द हाइट और ऑल्टीट्यूड, तो 4 सैटेलाइट चाहिए होते हैं. एज यू कैन सी देयर आर 4 सैटेलाइट्स.
हम लोग तो सर 3 ही करते हैं ना यूज। हाँ 3 ही कर सकते हैं, 3 का हम 6 भी कर सकते हैं, लेकिन 6 से हमारा सिर्फ एक्यूरेसी बढ़ेगा। मिनिमम 3 की जरूरत है। हम चाहे तो 6, 7, 8 भी कर सकते हैं। मान लो आप रडार फिक्स लेते हो, यहाँ पे शोर लाइन है, आप कहीं पे यहाँ पे हो, आपने एक ऑब्जेक्ट देखा, उससे रेंज बेरिंग लिया, दूसरा दिखा, उससे रेंज बेरिंग लिया, तो आपका पोजीशन निकल गया या नहीं? यस सर। लेकिन अगर आपने 5 रेंज एंड बेरिंग ले लिया तो उसे पोजीशन की एक्यूरेसी बढ़ेगी ना। Yes, sir. Accurate eye. यस सर। तो वैसे ही उसमें भी होता है, मिनिमम तो 2 चाहिए, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, लेकिन 5 ले लिया तो और अच्छा होगा। वैसे मिनिमम 3 चाहिए, लेकिन 6 लेंगे तो और अच्छा होगा, 7 लेंगे तो और भी अच्छा होगा। हम नहीं सर, मिनिमम की बात, मैं शिप के रिसीवर की बात कर रहा था, मतलब कि हमें तो सिर्फ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चाहिए रहता है ना। हाँ तो उसमें मिनिमम 3 चाहिए होगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 3 पे कर रहा है, वो 4 या 5 या 6 से भी फिक्स ले रहा होगा। सर जितने जिनके पास, विजिबल जिसमें सैटेलाइट, डीजीपीएस में फिर ज्यादा कर रहा होगा ना सर। किसमें? डीजीपीएस में। ना, डीजीपीएस दूसरा है, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। डीजीपीएस में नंबर ऑफ सैटेलाइट ज्यादा नहीं होते, नंबर ऑफ सैटेलाइट ज्यादा नहीं होते डीजीपीएस। डीजीपीएस दूसरा मेथड है, वो हम आगे लास्ट में बात करेंगे, अगली क्लासेस में। डीजीपीएस is not ओके सर। necessarily about more number of satellites. That implies accuracy correction by some other method. वो प्रोसेस दूसरा है। नेक्स्ट, जीपीएस रिसीवर जो डिफॉल्ट में लैट लॉन्ग दिखाता है, दैट इज शोन इन व्हाट, WGS84 सिस्टम। ये डिफॉल्ट होती है। सर इसको चेंज कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, आप मैनुअल में जाओ, उसका मैनुअल पढ़ो, हाउ टू चेंज द डेटम ऑफ द जीपीएस रिसीवर, follow the steps and you can change it। जैसे सॉफ्टवेयर में होता है ना, ये आया ड्रॉप लिस्ट आया, उसमें से सेलेक्ट कर लो तो वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके सर। अगर आप मान लो जेट्टी पे बंधे हो और आपका जीपीएस रिसीवर कुछ लैट लॉन्ग दिखा रहा है, अगर आपने डेटम चेंज किया तो हो सकता है कि आपका जो पोजीशन दिखा रहा था वो बदली हो जाए, दूसरा लैट लॉन्ग दिखाएगा। ओके सर। नेक्स्ट, जो हम लोगों ने बात करी अभी, वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम, जैसे रीड थ्रू, कुछ क्वेश्चन हुए तो जरूर पूछिए मेरे से। शेप ऑफ द अर्थ को डिफाइन करते हैं, विच इज नॉट अ स्फेयर बट स्फेरॉइड बेसिकली। पोल्स पे थोड़ा रेडियस कम है, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है, तो उसका एक शेप बनाते हैं हम, मॉडल बनाते हैं, रेफरेंसिंग करते हैं, इक्वेटर लेंगे, ग्रीनविच का मेरिडियन लेंगे, और सारी कैलकुलेशन जो होंगे, सारी रिप्रेजेंटेशन इसी 0 0 से होगा। इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ, इक्वेटर से नीचे साउथ, ग्रीनविच मेरिडियन से वेस्ट में वेस्टर्ली, राइट साइड ईस्टर्ली। So this modeling of the earth has been happening from long time. अलग अलग टाइम में अलग अलग मॉडल आता रहा, कभी गड़बड़ हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, but improvements kept on happening. Next, 59. So what we generally use is horizontal datum, which talks about 3D position, lat, long and altitude. Next, different models improvised
at different times 9 10 60 70 सर 59 आया नहीं सर 59 हाँ सर इससे पहले वाला आया नहीं स्क्रीन तो पहले वाला नहीं है अभी क्या स्क्रीन देख रहे हो 60 आया सर वर्ड ओके ज्योमेट्रिक अब 59 आया यस सर हाँ ओके सर नेक्स्ट right now somebody asked me whether it can be changed or not. Yes, it can be changed because the GPS receiver has got other datums also inside. इसके मेमोरी में अलग datums भी डाले हुए हैं which you can select if you want. Next 61. Okay. Yes, sir. Next. Datum shift का definition. सर ये सब तो क्वेश्चन आंसर्स में भेजा ही नहीं आपने. Datum shift नहीं है उसमें. नहीं सर, ना ही डेटम शिफ्ट है ना ही दूसरा वाला है. दूसरा वाला कौन सा? जो इससे पहले कर रहे थे सर. ठीक है तो नोट्स बना लेना. नोट्स में देखना नोट्स में है या नहीं. नहीं है सर. नोट्स में भी नहीं है. उसको बोल के बॉटल खुलवा ले, आ गया, क्लास खत्म हो गई है. अभी 2 मिनट में 2 मिनट बस. ये लास्ट स्लाइड है. लास्ट या एक या दो स्लाइड और बाकी है बस. खोल दे बॉटल, हो भी आ गया मैं, तो खोल दे बॉटल. भाई बाद में खोलिए बोतल. बाद में खोलिए बॉटल. नेक्स्ट 63. This is a question. Can GPS position be plotted directly onto the chart? 63 आया नहीं. Okay, आएगा. आ गया सर. So if I want to ask you a question, अच्छा चलो पढ़ लो पहले. If I want to ask you a question, can the GPS position be plotted directly onto the chart? Your answer, please. If सर दोनों का डेटम सेम है तो कर सकते हैं. Very good. दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर दो. सर डेटम डिफरेंट होंगे तो नहीं कर सकते हैं सर. तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? करेक्शन अप्लाई करेंगे. करेक्शन अप्लाई करेंगे. यस बस इतना काफी है. अब क्या करेक्शन, कहां से करेक्शन, वो बाद में देखी जाएगी. ठीक है. यस सर. गुड. सो दिस डज इट. डेटम्स वगैरह हमने देख लिया. एक बार रिव्यू क्वेश्चंस देख लो. ट्राई टू सेटिस्फाई योरसेल्फ कि हाँ इन सब के बारे में हम पढ़ चुके. कुछ आता है, कुछ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. इफ यू आर ओके विद दैट, then I am also okay with that.
और ओके सर, बस थोड़ा बहुत वापस से रिवाइज करना पड़ेगा। Of course. एक बार में नहीं होता, एक बार में कभी नहीं होता. Study is all about practice. So once you practice, you'll be better known. Next topic we'll pick up is speed determination. How the GPS gives you your speed over ground. अगले में, and also we'll talk about errors and DGPS. Time permitting एक class में, नहीं तो 2 class. Bye bye. Any questions? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Any questions, anybody? थैंक यू सर। कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा. नहीं सर, अभी तो Next week, sir. Next week. थैंक सर Bye-bye. नेक्स्ट वीक पूछेंगे सर। थैंक यू सर। Of course. चलो, bye bye. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir.